میں حفاظتی دستے ملیٹنٹوں کے خلاف آپریشن میں مسلسل مصروف ہیں۔ میندر سب ڈویژن میں ملیٹنٹوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان انکاؤنٹر آج بھی جاری رہا، لیکن آج دوپہر کے بعد علاقے کی مسجدوں سے اعلانات کرتے ہوئے لوگوں کو گھروں میں ہی رہنے کے لیے کہا گیا۔ کسی بھی صورت میں گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مقامی لوگوں کو حکم دیا گیا ہے۔ تازہ جانکاری کے مطابق میندر کے جنگلاتی علاقے وٹادوریا میں آج بھی وقفے سے گولہ باری ہوتی رہی، لیکن اب ملیٹنٹوں کے خلاف فضائی کارروائی کے لیے یہ بندوبست کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ آرمی چیف نروانے نے آج علاقے کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا تھا، جس کے بعد یہ پیش رفت ہوئی ہے۔ فوج نے اس آپریشن کے دوران راکٹ لانچر، ہیلی کاپٹر اور ڈرونز کے علاوہ ہیکسا کاپٹروں کا استعمال کیا ہے۔ جتنے بھی حضرات لوگ کام کر رہے ہیں یا اپنے بال بچے ہیں کھیتی باڑی کا کام کرنے میں مصروف، ان کو اپیل کی جاتی ہے کہ تمام اپنے گھروں میں بند ہو جائیں، اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر اپنے ٹھکانوں میں اکٹھے ہو جائیں۔ ایک مرتبہ پھر سنیں، گاؤں سلوتی کے تمام حضرات سے گزارش ہے، پلاسیوں میں جتنے بھی لوگ ہیں تمام اپنے کاروبار کو بند کر کے مال مویشیوں کو لے کر اپنے اپنے مکانوں میں۔ جموں کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ کے 2 معاملوں کی جانچ NIA کرے گی۔ NIA ہیڈ کوارٹر کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے، مکھن لال بندرو اور بہار سے تعلق رکھنے والے ویریندر پاسوان کے قتل معاملے کی جانچ اب NIA کرے گی۔ ان قتل کے معاملوں کے پیچھے پاکستان کی دہشت گرد تنظیموں کی منظم سازش کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کے CWC ممبر طارق حمید قرا نے جموں کشمیر کے موجودہ حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ الیکشن سے پہلے ہی کیوں جموں کشمیر کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد حالات بدلنے کے حکومت کے دعووں کا کیا ہوا۔ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے جب الیکشن نزدیک آنے والے ہوتے ہیں، جموں کشمیر وائی ڈز جموں کشمیر سٹارٹ بوائلنگ؟ BDC الیکشن ہو تو اس سے پہلے حالات خراب ہو جاتے ہیں، کلنگز ہوتی ہیں۔ ایون پنچ کا الیکشن ہو تو حالات خراب ہو جاتے ہیں، چھوٹا الیکشن ہو تو حالات خراب ہو جاتے ہیں، بڑا الیکشن ہو تو حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور صرف جموں کشمیر میں حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اب آگے 6 ریاستوں کے انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر 6 ریاستوں کے الیکشنز آنے والے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ الیکشن کے نزدیک ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے اور جموں کشمیر میں ہی ہوتا ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی گمبھیر سوال ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ ساری سچویشن ایسی جو سامنے آ رہی ہے، جو گورنمنٹ کی کلیم تھی کہ آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کے بعد میں حالات بالکل سدھر جائیں گے، یہ اس کے کانٹرری ہو رہا ہے۔ تو سرکار کو اس بات کے بارے بھی جواب دینا چاہیے، ان کو اس چیز کا بھی اپنی جگہ انالیسس کرنی چاہیے کہ آرٹیکل 370 کا ایبروگیشن جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں جہاں تک سیکیورٹی سینیریو کا تعلق ہے فائدہ مند رہا یا نقصان دہ ہوا۔ جموں کشمیر نیشنلسٹ پیپلز فرنٹ نے آج پریس انکلیو سری نگر میں پرامن احتجاجی مظاہرہ منظم کیا۔ حالیہ عرصے اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی ہلاکتوں کے خلاف یہاں احتجاج درج کرایا گیا۔ فرنٹ کے ممبران نے پرتشدد طریقے سے قتل کیے جانے کے تمام واقعات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ اس بار پنڈتوں یا دیگر اقلیتوں کے قتل کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہم اپنی طرف سے یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ دن گئے جب پہلی بار ایک پنڈت کو مارا گیا، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اور چلتا گیا یہ 30 سال سے یہ سلسلہ، لیکن ہماری یہ قوم ہمیشہ خاموش رہی۔ اب چونکہ یہ جموں کشمیر نیشنلسٹ پیپلز فرنٹ ایک غریب عوام کی پارٹی ہے، ہم سب غریب لوگ ہیں، کسی اوپر والے منتری کے خاندان سے نہیں آئے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام کلنگز کا پروب بھی ہو اور یہ جو اننون لوگ ہیں ان کو نون کیا جائے۔ ہماری میسیج تمام لوگوں سے یہ ہے کہ ایک بار آپ کھڑے ہو جائیے اور پھر دیکھیے یہ جو ان آرمڈ لوگوں کو مارتے ہیں، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ ریڈی والا ہو،
चाहे वो हमारा मजदूर भाई हो, चाहे वो कश्मीरी हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, इन सब को रोकना हमारा फर्ज बनता है। और हम लोगों को जागृत उठाने के लिए, इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए यहाँ आए। मैं ये कहना चाहता हूँ और कश्मीरियों को कहना चाहता हूँ, जो मेरे कश्मीरी गांव कस्बों में रहते हैं, अगर अभी कोई बिहारी बंगाली है, उनसे उनकी आवाज निकाले कि आपके साथ कोई कश्मीरी ने जुल्म किया। मुझे लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि जुल्म नहीं होगा। इंशाल्लाह कश्मीरियों की इज्जत है, इज्जत रहेगी, शान रहेगी। और मजदूरों को मार के कौन से यहाँ पे आज़ादी। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी की तरफ से आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहरीन कश्मीर में गुज़श्ता दिनों मिलिटेंटों के हाथों आम शहरियों की हलाकतों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। एहतजाजी मुतालबा कर रहे थे कि कसूरवारों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाल कर सख्त सजा दिलाई जाए। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने मीडिया को बताया कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के अवाम, खासकर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। कश्मीर में माहौल लगातार खराब होता जा रहा है और हालात तेजी से 1990 जैसे बनते जा रहे हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे तरीके से जिम्मेदार है। जब 370 इन्होंने हटाया, जब स्टेट को इन्होंने डिवाइड किया, उसके टुकड़े किए, तो ये कहा था कि अब चिड़ी भी नहीं मारी जाएगी। चिड़ी तो शायद नहीं मारी जा रही हो, लेकिन जनाजे लोगों को आए दिन निकल रहे हैं, बेगुनाहों का कत्ल हो रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो आए दिन शहीद हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ पाकिस्तान को कोस कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। जो लोग ये कहते थे कि 370 हटने के बाद दूध की नदियां बहेंगी, तो भाई साहब दूध की नदियां तो हमने कहीं नहीं देखी, लेकिन खून की नदियां ज़रूर बह रही हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कश्मीर में मिलिटेंटों के हाथों आम शहरियों की हलाकत की मजम्मत की है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने कहा कि लश्कर तैयबा टीआरएफ के नाम पर ऐसे कत्ल करवा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें कोई भी महजब समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं है कुछ, वो एक मुखौटा है। तो वो मुखौटा है टेररिस्ट फ्रंट का, आईएसआई का। वो मखौटा इसको इस्तेमाल करेंगे, जितनी देर इस्लाम में इस्तेमाल करेंगे उतनी देर टीआरएफ इस्तेमाल होगा। कल उनको लगता है कोई और मखौटा करेंगे तो कोई और मखौटा इस्तेमाल करेंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि किसी को भी हम कहीं मार दें। कोई बेचारा मजदूर काम करने के लिए वहाँ आ रहा है, उस मजदूर को हम मार देंगे। ये कोई किसी भी कौम के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी धर्म में, किसी भी मज़हब में ये कहीं अलाउ नहीं है। ये सब जघन्य काम है, हम इसकी पूरी निंदा करते हैं। अशोक कौल ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह का कश्मीर दौरा एक तारीखी दौरा होगा और पार्टी उन्हें ज़बरदस्त इस्तकबाल करने के इंतजाम कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन ख़त्म करके अमित शाह ने एक बहुत बड़ा काम किया है। शाह जी का भी एक बहुत बड़ा ये दौरा, ये आज की वर्तमान परिस्थितियों में ये दौरा बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। उस दृष्टि से जम्मू कश्मीर में जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह फैसला किया कि उनके इस दौरे को पर उनका एक भव्य स्वागत करें, क्योंकि वही एक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 370 और 35 को हटाने में राज्यसभा में और लोकसभा में बड़ी शिद्दत के साथ अपना जो आर्ग्यूमेंट था वो आर्ग्यूमेंट रखा था और एक्ट उन्होंने पास किया है। और उस एक्ट को जिस प्रकार से उन्होंने पास किया है, जिस शिद्दत के साथ उन्होंने पास किया, उस के दृष्टि से उनका भव्य स्वागत जम्मू में हो, ये हमारे कार्यकर्ताओं ने सोचा है। श्रीनगर और अनंतनाग अजला में गैर मकामी मजदूरों की हलाकत और इसके खौफ से वादी छोड़ने के बाद इन हलाकतों के मनफी असरात सुपूर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी पर देखे जा सकते हैं। इन हलाकतों ने फ्रूट मंडी सुपूर में गैर मकामी ताजरों में खौफ पैदा किया है, जिसके नतीजे में उन्होंने फ्रूट मंडी सुपूर में सेब के मौसम में वादी छोड़ना शुरू कर दिया है। फ्रूट मंडी सुपूर से वाबस्ता ताजिरों और फलों के काश्तकारों ने इन वाक़यात को इंतहाई बदकिस्मती से ताबिर किया है। सदर फ्रूट मंडी सुपूर फयाज अहमद मलिक ने इन वाक़यात को बदबख्ताना करार दिया और कहा कि इससे मंडी के कारोबार पर यकीनन असर पड़ेगा। पिछले 5-6 सालों से जो ये फ्रूट इंडस्ट्री है ये ज़वाल पजीर हो रही है। आप देखें 16, उसके बाद 19, उसके बाद बर्फ़बारी और भी जो इन सालों में हालात ख़राब हो गए। अभी जो ये 5-10-15 दिन से ये किलिंग्स हो रहे हैं। मैं सोपोर मंडी की आपको बात बताऊं, क्योंकि इस सोपोर मंडी में एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और इंडिया के हर कोने से लोग यहाँ आ जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, इस मंडी से अपना कारोबार करते हैं।
प्लस नेपाल और ढाका से भी लोग यहाँ आते हैं, लेकिन पिछले 10-15 दिन से, क्योंकि इस मंडी पर इससे 5-6 साल में बहुत बुरे असरात पड़े हैं। एक्चुअली फ्रूट मंडी सोपोर जो है, यहाँ पर बहुत सारे बाहर के लोग जो हैं काम कर रहे हैं, एज ए बायर एज ए ट्रेडर यहाँ पे रहते हैं। कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, और कुछ ही दिन पहले जो इंसिडेंट्स कुछ हुए हैं तो थोड़ा बहुत वो परेशान हो गए। कल उनको एसडीपीओ साहब ने भी एश्योर किया, आप बैठिए यहाँ आराम से बेचिए, आपको हम सिक्योर करेंगे। बहुत खरीदार थे यहाँ पे, ग्रोवर्स को इस पे रेट पे भी बहुत असर पड़ेगा, तो सारे भाग रहे, डर के कारण सारे भाग रहे हैं। तो यहाँ भी परेशानी हो रही है, फड़ वालों की भी हो रही है, ड्राइवर साहब की भी हो रही है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। नूर की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, आका की आमद। पूरे जम्मू कश्मीर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। दरगाह हजरत बल पर गुज़श्ता रात शब ख्वानी का अहतमाम किया गया और खुसूसी दुआएं की गई। यहाँ दुरूद और अज़कार की मजलिस पूरी रात जारी रही और सुबह अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने दरगाह हजरत बल पर फजर की नमाज अदा की। नमाज के फ़ौरन बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार मुक़द्दस का दीदार कराया गया। उसके बाद दिन भर हर नमाज के बाद आसार शरीफ का दीदार कराया जा रहा है। लोग अमन और खुशहाली और अपनी नजात के लिए दुआ कर रहे हैं। कोविड के चलते महदूद तादाद में ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों को मज़ारात और मसाजिद में जमा होने की इजाज़त दी गई है। इस दौरान लोग कोविड प्रोटोकॉल्स पर अमल करते दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने दरगाह हजरत बल जाकर जलसे में शिरकत की। उन्होंने यहाँ नमाज की अदायगी के बाद आसार मुबारक की निशानदेही की। इस मौके पर उनकी सिक्योरिटी पर मामूर मुहाफिज भी फारूक अब्दुल्ला के हमरा मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला खुसूसी दुआओं में भी शामिल रहे। याद रहे कि श्रीनगर में ईद मिलाद की सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुई। श्रीनगर में ईद मिलाद का बड़ा जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन अंदरूनी इलाकों में जुलूस निकाले गए। फतह कदल श्रीनगर में मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया। यहाँ खासी तादाद में फर्जंदान तौहीद शरीक रहे। इसके अलावा MA रोड श्रीनगर में भी कुछ बच्चों के साथ मकामी मदरसे के तलबा ने मिलादुन नबी की मुनासिबत से एक जुलूस निकाला और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नारे बुलंद किए। ये लोग जुलूस की शक्ल में डलगेट तक गए। ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में आज पुलवामा में भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद किया गया। पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से मिलाद के जुलूस बरामद हुए। ज़िले के पीतीपुरा इलाके की दरगाह में रात भर शब ख्वानी और दुरूद अस्कार की महफिलें आरास्ता की गईं। आज ईद मिलादुन नबी की तकरीब पर नमाज ज़ोहर के बाद आस्तान आलिया में मौजूद तबरुकात की निशानदेही कराई गई। इस मौके पर उलमा ने ईद मिलाद की अहमियत पर रोशनी डाली और वादी में अमन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। दुआ करान परदिगार करीम बूझन क्या ये दुआ सोन रहमत वोल पैगम्बर कुरान मजीद फरमा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। इस तमाम इंसानियत खतर आलमी इंसानियत खतर रहमत बनित आमद सोन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यम बकाय आलिया पे पैगाम आज नेरन वोल तमाम दुनिया तन पैगाम अमन पैगाम दिवान तमाम कायनातस। दारुल उलूम शाह हमदान पामपुर में आज ईद मिलादुन नबी के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई। यहाँ उलमाए कराम के साथ साथ दारुल उलूम में ज़ेर तालीम बच्चों ने सीरत नबी पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर बच्चों ने नात व मनक़बत भी पेश की। खानकाह मौला पामपुर में भी आज ईद मिलादुन नबी के हवाले से एक इज्तिमा मुनक्किद किया गया, जिसमें अक़ीदतमंदों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मिलादुन नबी पर उलमाए कराम ने रोशनी डाली और दीन की पैरवी करने की लोगों को तलकीन की गई। इस इज्तिमा में वादी के कई बड़े आलिम भी मौजूद रहे। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात कुलगाम में भी मुनक्किद हुई। ज़िले की तमाम मसाजिद खानकाहों में दुरूद अस्कार की महफिलें आरास्ता हुई। यहाँ सबसे बड़ी तकरीब ज़ियारत शरीफ हज़रत मीर सईद हुसैन सिमनानी में मुनक्किद हुई। यहाँ रात भर शब ख्वानी की महफिलें भी मुनक्किद की जाती रहीं। उलमा इकराम ने पैगम्बर इस्लाम की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली। यहाँ पर कश्मीर में अमन व आश्ती के लिए दुआएं मांगी गई। ज़िले के बेशतर इलाकों से रिवायती तौर पर जुलूस भी निकाले गए। फिरकोलबल पटन में ईद मिलादुन नबी की मुनासिबत से मुए मुक़द्दस की ज़ियारत कराई गई। हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। अक़ीदतमंदों ने मुए मुक़द्दस की ज़ियारत करके दुआ की। इससे पहले यहाँ से एक रैली निकाली गई जो तापर पटन में इख्तिताम पजीर हुई। जुलूस मिलादुन नबी में काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने भी शिरकत की। उलमा ने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तलक़ीन की।
उधर बिरवा के कई इलाकों में भी ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से तकारीब मुनक्किद हुई। हम गरीब आदमी हैं, आते हैं 1-1.5 साल कमा के हम चले जाते हैं घर। इस गांव में काम करते हैं, जिसके घर में रहते हैं वो लोग अच्छे हैं, हम एक ही साथ बैठकर खाते हैं, हमको पैसा मिलता है तब भी हम आते हैं और इससे हम रोजी रोटी कमाते हैं। गरीब आदमी इसलिए हमको आना पड़ता है थोड़ा सा। ईद मिलाद के सिलसिले में ज़िला अनंतनाग में भी तकरीबात का अहतमाम हुआ। यहाँ पर सबसे बड़ी तकरीब अनंतनाग कस्बे में मुनक्किद हुई और यहाँ से एक बड़ा मिलाद जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की, जबकि ख़वातीन और बच्चों की एक खासी तादाद भी जुलूस में मौजूद रही। बाद में उलमा ने फ़लसफ़े मिलाद पर रोशनी डाली और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने की आलम इंसानियत को तलक़ीन की। इस दिन यानी विलादत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिन हम लोगों तक यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि ये दिन हमें यही सिखाता है कि आपस में इत्तिफाक, आपस में इखलाक, आपस में एक दूसरे के काम आना। बाकी जो इस वक्त कश्मीर में हालात बने हुए हैं, हम इस दिन अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि इस दिन हज़ूर आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मबऊस के सदके यानी दुनिया आने के सदके अल्लाह तबारक तआला से दुआ यही करेंगे जो कश्मीर में हालात बने हुए हैं, अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा पर रहमत। मौजवाड़ा शोपियां में जामिया मीनारुल हुदा में ईद मिलाद मनाई गई। आशिकान रसूल इस महफिल में बड़ी तादाद में शरीक थे। हिफ्ज़ कुरान पूरा कर लेने वाले तालिब इल्मों की यहाँ दस्तारबंदी भी की गई। इस दौरान मौलाना शकीलुर रहमान को जामिया मीनारुल हुदा का सदर मुकर्रर किया गया। मुकर्ररीन ने हालिया हलाकतों, तेज़ाब हमलों, गुंडागर्दी और दीगर माशरती बुराइयों की मजम्मत की और कहा कि हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम अपने माशरे में इस तरह के गैर इंसानी अफ़आल को रोकें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो उन्होंने औरतों का हक भी दिया है, उन्होंने मजदूरों को अपना हक दिया है, उन्होंने बच्चों को भी अपना हक दिया है। आसार शरीफ हज़रत बल पंजोरा शोपियां में मुए मुक़द्दस की झलक देखने के लिए बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद जमा थे। सैकड़ों मर्दों, ख़वातीन और बच्चों ने यहाँ खुसूसी दुआएं की। मज़ार शरीफ कुरान पाक की तिलावत और दुरूद शरीफ के ज़िक्र से गूंज उठी। इस मौके पर मुतवल्ली मीर बशीर अहमद ने पैगम्बर इस्लाम के अजीम उसूलों और तालीमात पर रोशनी डाली। बारामूला में सैयद जांबाज वली के मज़ार से ईद मिलादुन्नबी का जुलूस बरामद किया गया। ये जुलूस मेन मार्केट से होता हुआ ओल्ड टाउन बारामूला के दरगाह आलिया पर अख्ताम पजीर हुआ। नात ख्वानी के अलावा इश्क़ मोहम्मदी से सरशार नारे इस दौरान बुलंद किए गए। यहाँ मुल्क और वादी में अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस गहवारे अमन में मज़ीद बिगाड़ पैदा न हो सके। हम अक़वाम आलम के साथ उनके शान बशाना है। कोई भी मज़हब, कोई भी मिल्लत का कोई भी फ़र्द हो, बिल्कुल इस्लाम उस पर जबर और तशद्दुद और जुल्म नहीं चाहता है। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मौके पर आज दारुल उलूम मुस्तफ़ा अरिमपुरा कुपवाड़ा के सरबराह मौलाना मोहम्मद वसीम रज़ा मुस्तफ़ाई की सदारत में अहले सुन्नतुल जमात कुपवाड़ा की पूरी टीम ने कुपवाड़ा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से शरबत का अहतमाम किया गया और मिलादुन्नबी की खुशी में लोगों में मिठाई तकसीम की गई। आका अलैहिस्सलाम पूरी कायनात के लिए रहमत लेकर आए हैं, पूरी आलम के लिए वो बायस अमन बनकर आया है। यहाँ का जहाँ पर इस्लाम का ताल्लुक है, इस्लाम दहशत गर्दी का नाम नहीं है, इस्लाम फितनो फसाद का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम अमन का पैगाम दे रहा है। जम्मू में ईद मिलादुन्नबी की तक़रीबात मुनक़्क़िद की गई और जुलूस निकाला गया। इस मौके पर लोगों ने कहा कि इस्लाम अमन का मजहब है और हमें हुजूर की तालीमात पर अमल करना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये अमन और शांति का पैगाम देता है इस्लाम दीन, हमें अमन और सलामती का। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान को अमन और सलामती के साथ और आपसी भाईचारगी और मोहब्बत के साथ सबको मिल करके, हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सबको हम कहते हैं कि हम आपस में भाईचारगी, मोहब्बत, प्यार बना करके रखें। जो दर्स हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, हमें उस पर चलना चाहिए। किश्तवाड़ के मुसलमानों ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शानदार जुलूस निकाले। जश्न विलादत के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में मजहबी जोश व खरूज देखा गया। मसाजिद में इज्तिमात का अहतमाम करते हुए सीरत नबी पर चलने की तलकीन की गई। कामगार मस्जिद किश्तवाड़ से बड़ा जुलूस बरामद किया गया जो मुख्तलिफ बाज़ारों से होता हुआ दरगाह फरीदिया ज़ियारत पर अख्ताम पजीर हुआ। जुलूस की क़यादत ग़ुलाम हुसैन काजी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस्लाम अमन और लोगों की सलामती के अलावा खुशहाली के लिए है। उन्होंने मुसलमानों को
उन ताकतों से खबरदार रहने को कहा जो मजहब के नाम पर तनाज़ात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तरकोलबल पटन में ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से मुँह मुक़द्दस की ज़ियारत कराई गई। हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। अक़ीदतमंदों ने मुँह मुक़द्दस की ज़ियारत करके दुआ की। इससे पहले यहाँ से एक रैली निकाली गई जो तापर पटन में इख्तिताम पजीर हुई। जुलूस मिलादुन्नबी में काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने भी शिरकत की। उलमा ने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तलक़ीन की। उधर बिरवा के कई इलाक़ों में भी ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से तक़ारीब मुनक़्क़िद हुई, जिनमें हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत करके सीरत रसूल को याद किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पे तवल्लुद हुए इस दिन, इसलिए हम भी जोश खरोश से ये ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस तहे मज़न येल के जना अश वुचान ब्रो कुछ जहालत कोरन जिंदे दफन करान, जुल्म ओस चपर, जबर ओस चपर, ज़िद सुंद ओस न एहतराम, कंसन पे ओस न शबकत। ये तवल्लुद गो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन कोरन हुंद बहार, यमन कोरन आई खुशी, ये कि आव दुनियास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की निस्बत से बानिहाल में कई तकरीबात का अहतमाम किया गया। कोविड के पेश नज़र कस्बा बानिहाल की मरकज़ी तकरीब में आशिकान रसूल की शिरकत को महदूद रखने का हुक्म दिया गया था और करवा बानिहाल से आए जुलूस को पुलिस ने कस्बा बानिहाल में दाखिले की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद अक़ीदतमंदों ने जामा मस्जिद दस्तगीर साहब में ईद मिलादुन्नबी की तकरीब मुनक़्क़िद की। ज़िला इंतज़ामिया रामबन ने ये पाबंदियाँ आयद रखी थी। म्यूनसिपल पार्क बानिहाल में इस मौके पर इस्लामी परचम को लहरा कर सलामी दी गई। मुक़र्रिरीन ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तलक़ीन की ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब हो। दिल दुखी है क्योंकि जो ये कोरोना, इस वक्त कोरोना की बीमारी है, कोरोना के इन पाबंदियों की वजह से हम इस साल मिलाद नहीं मना पाए। जिस दिन में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, अहले ईमान के लिए उस दिन से बड़ा खुशनसीब दिन कोई नहीं है। भद्रवाह में ईद मिलादुन्नबी का जोश व खरोश देखने को मिला। इंतज़ामिया ने मजहबी जुलूस में महदूद तादाद में लोगों की शिरकत की इजाज़त दी थी। विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मौक़े की मुनासबत से जामा मस्जिद भद्रवाह में दरस कुरान, दरस हदीस और नातख़्वानी समेत कई प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुए। लोग जुलूस की शक्ल में पहुंचकर जामा मस्जिद में जमा हुए और इज्तिमा में शिरकत की। ये जुलूस मस्जिद मोहल्ला, बसरी बस स्टैंड, किला मोहल्ला, धर्मपुरा से होता हुआ वापस जामा मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आज का पूरी आलम इंसानियत के लिए अमन का पैगाम लेकर आए। तमाम आलम इंसानियत जो आजकल ये कोविड की बीमारी फैली हुई है, इससे मैं दुआ गो हूँ कि इससे पूरी आलम इंसानियत को राहत मिले, तमाम आलम में अमन व आशती का दौरा हो। रियासी में फ़ौज ने लोगों के साथ मिलकर ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाया। सब डिवीज़न माहौर में आर्मी लोगों की खुशियों में शामिल रही। फ़ौज ने कहा कि यहाँ मिलिटेंसी का खात्मा करके खुशहाली लाई गई है। मकामी लोगों ने इस मुक़द्दस मौके पर ताउन फराहम करने पर फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। इस इलाके में आर्मी की 58 RR यूनिट तैनात है। कि मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को बहुत बहुत मुबारकबाद और बिलखुसूस में आज 58 RR माहौर सीओ साहब और उनकी फौज का दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम में जो है शमूलियत की और हिस्सा डाला। हम फौज को बहुत ही सलूट करते हैं और हमें अपनी फौज पर फख्र है। अल्लाह ताला करे कि ये ईद बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अमन और खुशहाली लाए और हमारा मुल्क जो है दिन दुगनी रात। पुंछ शहर में भी आज ईद मिलादुन्नबी बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। शहर की सभी मसाजिद में जलसे मुनक्किद किए गए, जहां हज़ारों लोग शरीक रहे। ईद गाह मस्जिद पुंछ में सबसे बड़ी तकरीब का अहतमाम किया गया था। हर साल ईद मिलाद पर यहाँ बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते थे, लेकिन इस बार कोविड के चलते जुलूस नहीं निकाले गए। लद्दाख खित्ते में ईद मिलाद का सबसे बड़ा इज्तिमा द्रास में मुनक्किद किया गया। यहाँ बाजार हज़ारों लोगों ने मिलादुन्नबी की इस बड़े जुलूस में शिरकत की। याद रहे कि ज़िला करगिल का ये सबसे बड़ा डिवीज़न दुनिया की सर्द तरीन जगहों में से एक है, लेकिन सुबह सवेरे से ही हर गांव से लोग जुलूस की शक्ल में आकर द्रास की गौसिया मस्जिद में जमा हुए। इस दौरान
हर देही इलाके में जुलूस के लिए जगह जगह तबरुकात, शरबत, चाय और ताम का इंतजाम किया गया। लोगों ने पूरे खित्ते में मुसलमानों और आम लोगों की खुशहाली के लिए दुआएं की। जामा मस्जिद लेह में सीरत-उन-नबी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। अंजुमन मोइनुल इस्लाम से वाबस्ता नौजवानों ने इस महफिल का एहतमाम कराया था। हिमालयन इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग सेंटर में भी एक महफिल सजाई गई थी, जिसमें सभी मसालिक के मुसलमान शरीक रहे। शिया, सुन्नी और नूरबख्शी मसलकों से शिरकत करके लोगों ने इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ साथ यकजहती पर जोर दिया। इमाम जामा मस्जिद मौलाना उमर नदवी इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने रसूल करीम के बताए हुए रास्ते पर चलने की लोगों को तलकीन की। सरहदी जिला राजौरी में मजहबी जोशो जज्बे के साथ ईद मिलादुन्नबी मनाई गई। राजौरी और नौशहरा टाउन्स में बड़े बड़े प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। नौशहरा में मुख्तलिफ इलाकों से आए लोग मीलाद के जुलूस में शामिल होने के लिए बस स्टैंड पर जमा थे। ये जुलूस ओल्ड टाउन इलाके में बरामद हुआ और मेन चौक से गुजरते हुए ईदगाह नौशहरा पर अख्तिताम पजीर हो गया। यहाँ पर उलमा ने इस्लाम की तालीमात पर रोशनी डाली। ये था कि अमन और भाईचारा, प्यार और मोहब्बत, यही उन्होंने पैगाम अपनी 63 साला अपनी ज़िंदगी में दिया है। कठुआ में भी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मदनी मस्जिद में जलसे का अहतमाम किया गया और मुल्क में अमन और भाईचारे के लिए दुआ की गई। भाईचारे को ख़त्म करने वाले सियासतदानों से लोगों को की हिफाजत की दुआ की गई। मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भाईचारा फिर लौट आए। जुलूस मोहम्मदी निकालते थे हर साल, मगर ये 2 साल से कोविड-19 की वजह से हम जुलूस नहीं निकाल सके, इसलिए हमने मस्जिद में ये प्रोग्राम रखा। हमने आज भी यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के लिए यही दुआ की है कि तमामी हजरात, मेरा सभी हजरात से ये पैगाम है कि हम जो सीधे साधे सभी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सभी हजरात, ये सियासतदान जो हजरात हैं, इनके कहने में ना आए। वक्त है कि ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मौजूदा दौर में लोग जिंदगी की मुश्किलात से तंग आकर खुदकुशी तक का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ की गोविंदसर की रहने वाली खानू देवी ऐसे दिल शिकस्ता लोगों के लिए मिसाल है। 16 साल खानू देवी बचपन से ही दोनों हाथ और एक पैर से माजूर हैं, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि परवाज परों से नहीं हौसलों से होती है। मुकम्मल जिस्म कुदरत का अनमोल तोहफा है। माजूर इंसान अक्सर चीज़ों के लिए दूसरों पर मुनहसर रहता है, लेकिन दोनों हाथ और एक पैर से माजूर खानू देवी ज़रा मुख्तलिफ हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ की रहने वाली खानू देवी ने माजूरी को लाचारी नहीं बनाई, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाया। यही वजह है कि खानू देवी दूसरे बच्चों की तरह ही रोजाना स्कूल जाती हैं। क्लासरूम में माजूर हाथों से ज्योमेट्री खोलकर पेन निकालती हैं और लिखना शुरू करती हैं। राइटिंग ऐसी कि लोग अश अश करते नहीं थकते। इतना ही नहीं, खानू देवी क्लास में अव्वल नंबरात के साथ पास भी होती हैं। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल गोविंद में पढ़ती हूँ। मेरे पापा सब्जी मंडी में काम करते हैं। मेरे बाजू बचपन से ही ऐसे है, मुझे कभी दिक्कत नहीं आती। मैं खुद लिखती हूँ, खुद पढ़ती हूँ। स्कूल में कैरम भी खेलती हूँ, डांस भी करती हूँ। डांस में, कैरम में बहुत सारे नाम मिले। प्रेजेंटली वो 10th क्लास में है और अगर उसकी बात की जाए तो बड़ी ही पंक्चुअल है लड़की, बहुत ही अच्छी है, ओबीडियंट है, काम अच्छे से करती है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है उसका अच्छा। ऑब्वियसली मैं मानती हूँ इस चीज़ के लिए कि वो उसकी कैपेबिलिटीज़ में अगर हमें कहें तो कहीं हमें कोई शक नहीं है उस पर। सभी फील्ड्स में अच्छी है वो, हर टीचर के रिस्पांस अच्छा देती है, सब्जेक्ट्स में उसको इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में भी वो इंटरेस्ट लेती है कि किसी भी चीज़ का, और इतनी अच्छी है, इतनी टैलेंटेड है और क्लास में भी चुपचाप करके अपना काम करती है। कोई उसके प्रति शिकायत नहीं है। ऐसे स्कूलों में भी कि बेटियां जो हैं वो छा गई हैं। खानू देवी के वालिदैन का कहना है कि उन्हें उनकी बेटी की माजूरी को लेकर दुख तो होता है, लेकिन उसके हिम्मत, हौसले और मेहनत से खुशी मिलती है। प्रॉब्लम कोई नहीं है। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਲੱਭਣ ਉਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। कोई परेशानी नहीं थी ਸਾਨੂੰ, सिर्फ ਅਸੀਂ ये जानने पे इसी कोई नौकरी मिल गया, पढ़ी लिखी है वो नौकरी मिली है माड़ी मोटी सी। ये बच्ची खिलौने बनाती है घर पे,
कैरम भी खेलती है स्कूल पे। दोनों बाजू और टांग नहीं होने के बावजूद भी ये लड़की डांस भी कर लेती है बड़े अच्छे तरीके से। और मैं मानता हूँ कि पता नहीं ये कुदरत का क्या एक करिश्मा है जो ये लड़की ने इतना बड़ा टैलेंट इसमें ये कूट कूट के भरा है। खानू देवी उन तमाम लोगों के लिए मिसाल हैं जो जरा सी परेशानी पर गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। वहीं सेहतमंद माशरे को भी ये मुहासबा करने की ज़रूरत है कि वो माजूर लड़के और लड़कियों पर तरस नहीं बल्कि उनके हुकूक और यकसा मौक़े फराहम कराने की पेशरफ्त में किस हद तक गामज़न हैं। इरादे अगर मजबूत हो तो इंसान किसी भी मंजिल को पा सकता है। जी हाँ, जी बिल्कुल साबित कर दिया है जिला कठुआ के गोविंसर हाई स्कूल की दिव्यांग छात्रा खानू देवी ने। ये मिसाल बन चुकी हैं उन लोगों के लिए जो जिंदगी में किसी न किसी हादसे के कारण निराश हो चुके हैं। चरणजीत सिंह, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कठुआ। जिला किश्तवाड़ में फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने करोड़ों रुपए सरकारी खजाने में जमा नहीं कराए हैं। नाइट चौकीदारों ने करोड़ों रुपए की सरकारी रकम अपने पास रखी हुई है। एक आरटीआई दरख्वास्त से पता चला कि 109 नाइट चौकीदारों का तकर्रुर किया गया। लोगों ने पूरे मामले की जांच कराने की एलजी इंतजामिया से मांग की है। कई सालों से सरकारी खजाने में रकम न जमा कराने का ये बड़ा घोटाला मंजर आम पर आया है। हैरान कुन बात यह है कि यहाँ पर बरसरकार कुछ चौकीदारों ने अपनी तनख्वाह 2 महकमों से वसूल की है। किश्तवाड़ में असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स ने इस मामले में कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। महकमे के कुछ चौकीदारों के जाली सर्टिफिकेट्स की तौसीक के बाद भी वो मिलीभगत से तनख्वाह पा रहे हैं। लोगों के मुताबिक कुछ नाइट चौकीदारों ने लाखों रुपए मालियत की अपनी जायदादें बना ली हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो से भी इस मामले की शिकायत की गई थी, ताहम आज तक इस केस में कोई मुनासिब तफ्तीश नहीं की गई। तो मैंने नाइट चौकीदार जो है उनकी वो लिस्ट मांगी थी, इनको आपने राशन कितना दिया है, तो कितना आपने इनका पैसा वसूल किया है गवर्नमेंट खाते में। तो वहाँ से मुझे जवाब मिल गया कि इसमें जो है नाइट चौकीदार दर्जनों के हिसाब से जिनका पैसा बहुत ज़्यादा बकाया है, जैसे कि मतलब लाखों करोड़ों के हिसाब से बकाया पैसा है। इस वक्त 100 कुछ चौकीदार हैं और वो चौकीदार जो हैं वो कुछ लोग तो उनमें से जो हैं कि वो अपना 2-2 डिपार्टमेंटों से उन्होंने तनख्वाहें ली हैं, लेकिन कोई पूछताछ नहीं है, कोई कुछ नहीं। और उन चौकीदारों को इस वक्त स्टोर कीपर बना दिया गया है। हम तो हैरान इसी बात पर हैं कि इस वक्त तो गवर्नर राज है। हम कहते हैं कि इस गवर्नर राज में भी अगर यही हाल रहा तो गरीबों का क्या हाल होगा। हम चाहते हैं इसकी हाई लेवल पर इंक्वायरी हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो। कॉमर्स व इंडस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर्स के मरकजी वजीर पीयूष गोयल का कहना है कि सरकार कश्मीर की सयाहती सनत में नई रूह फूंकने के और सयाहों को वादी की जानिब रागिब करने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। अनंतनाग दौरे के दौरान पहलगाम में बीजेपी वफ्द से मुलाकात के बाद गोयल ने इन बातों का इजहार किया। वफ्द की क़यादत भारतीय जनता पार्टी के यूटी नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ कर रहे थे। इस मौके पर लीडरान ने वजीर के साथ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। देते हैं कि देश भर से लोग यहाँ आए, पर्यटक यहाँ पे आए, और मैंने जो 2 दिन में उत्साह देखा है हमारे कश्मीरी भाई बहनों को, जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, लाजवाब काम कर रहे हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स हो, हैंडलूम हो, फूड प्रोसेसिंग हो, जो सेवा भाव से पर्यटकों की सेवा करते हैं। वास्तव में आनंद आ गया इस विजिट में। जो मैंने गोल्फ कोर्स पे जैसे नए पर्यटन के लिए हट्स का उद्घाटन किया, ऐसे नए प्रयोग से मुझे लगता है कश्मीर का भविष्य उज्जवल मेरी आंख के सामने है। भारतीय जनता पार्टी के यूटी नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि कश्मीर में गैर मकामी बाशिंदों के कत्ल और दीगर मामलात पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल के साथ बीजेपी कश्मीर कैडर की तफसीली गुफ्तगू हुई और इस बारे में मजीद इक़दाम उठाने के लिए मरकजी वजीर से अपील की गई। उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल का कश्मीर दौरा वादी के लिए काफ़ी सूदमंद साबित होगा और सरकार यकीनी तौर पर मौजूदा ख़राब सूरत हाल के तनाजुर में ठोस पॉलिसी ज़रूर मुरतब करेगी। उनको हमने ये कहा कि कश्मीर के 70 लाख मुसलमान आपके साथ हैं, आप डरिए मत। उनको हमने हौसला अफजाई की है और सरकार के साथ भी हमने ये टैकअप किया है कि उनको अब कोई खतरा नहीं होगा
तो वो भी, क्योंकि उनका यहाँ लेन देन बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ भी वो काम करने के लिए आ जाते हैं, तो बिहारी जैसा काम यहाँ कोई नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि आज वुलवुड क्रॉप साइंस ने कश्मीर के किसानों को उनके दरवाजे पर ही मिट्टी की सेहत की रिपोर्ट फराहम करने के लिए मुफ्त मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वैन शुरू की है। कश्मीर में डायरेक्टर महकमे ज़राअत चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज महकमे ज़राअत के सीनियर अफसरान की मौजूदगी में मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ये गुजारिश भी की और ये यकीन भी दिलाया कि अगर किसी लेवल पे आप लोगों को टेक्निकल नो-हाउ की ज़रूरत हो, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत हो, आपके वो लोग जो इस टेस्टिंग के साथ एसोसिएटेड हैं, अगर उनको और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत हो तो हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर शाहाना बशाना इनके साथ खड़ा है। कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।